Good morning, students. This is Dr. Kamlesh Sharma from Department of Physics, RR College, Alwar. Today we are going to discuss Kirchhoff's laws and its applications in circuit analysis. Now, let us start Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws were first described in 1845 by German physicist Gustav Kirchhoff. They are very useful in circuit analysis as any circuit or network can be solved using them. Kirchhoff's laws in fact quantify how current flows through a circuit and how voltage varies around a loop in a circuit. He stated two basic rules for voltage and current. The first one is Kirchhoff's current law and the second is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law, which is the first law, it states that current flowing into a node or a junction must be equal to current flowing out of it. In other words, the algebraic sum of the currents flowing into any node is equal to the sum of currents flowing out of that node. Mathematically, it can be written as summation ik equal to 0. This is a consequence of charge conservation. किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। परिपथ के किसी भी संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है, इसलिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य होता है। इस डायग्राम में एक नोड दिया हुआ है। नोड पर 5 धाराएं मिलती हैं। यहाँ I1, I2, I3 धाराएं नोड की तरफ प्रवाहित हो रही हैं और I4 और I5 नोड से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। जो धाराएं नोड की तरफ प्रवाहित होती हैं उनको हम प्लस लेते हैं और जो धाराएं नोड से बाहर की तरफ प्रवाहित होती हैं उन्हें माइनस लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो इक्वेशन बनती है वो होती है I1 प्लस I2 प्लस I3 minus I4 minus I5 equal to 0. Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is the second law. It states that the sum of all voltages around any closed loop in a circuit must equal to 0. This is a consequence of charge conservation and also conservation of energy. Similarly to Kirchhoff's current law, the voltage law can be stated as summation Vk equal to 0. किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। इस डायग्राम में एक लूप दिया हुआ है। इस लूप में दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं E1 और E2 और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2। इस लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करते हुए जो इक्वेशन आती है वो आती है V1 प्लस V2 प्लस E2 माइनस E1 इक्वल टू 0। यहाँ E1 माइनस लिया गया है क्योंकि E1 की दिशा V1, V2 और E2 की दिशा से विपरीत है। Applications of Kirchhoff's laws. There are two methods to solve the problems connected with different complicated networks. The first method is node or junction analysis. This method is based on the current law and is called node or junction analysis. The second method is mesh or loop analysis. This method is based on the Kirchhoff's voltage law and is called mesh or loop analysis. Let us start node or junction analysis. This method is used when the primary aim is to find the voltages at different nodes or junctions or to find potential difference between these junctions. The use of admittance is preferred over the impedances for simplification. ये मेथड वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ हमें किसी नोड पर वोल्टेज का मान निकालना हो या किसी एडमिटेंस के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। यहाँ हम इम्पीडेंस की जगह एडमिटेंस को काम में लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है।
इस डायग्राम में एक नेटवर्क है जिसमें 5 एडमिटेंस लगे हुए हैं, y1, y2, y3, y4 और y5, और एक वोल्टेज सोर्स E लगा हुआ है। किसी भी एडमिटेंस से अगर हम धारा का मान निकालते हैं तो आता है I1 E माइनस EA इंटू Y1, जहाँ पर EA का मान A नोड पर वोल्टेज का मान है। I2 है EA माइनस EB इंटू Y2, यहाँ पर EB B नोड पर वोल्टेज का मान है और EA A नोड पर वोल्टेज का मान है। I3 is equal to EA minus 0 into Y3. I4 is equal to EB minus 0 into Y4. I5 is equal to EB minus 0 into Y5. यहाँ ये माना गया है कि O पॉइंट पर वोल्टेज 0 है। अब नोड्स A और B पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करते हैं। पहले नोड A पर किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करने पर जो इक्वेशन आती है वो है I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में I1, I2 और I3 के मान रखने पर जो इक्वेशन आई वो ये है E माइनस EA इंटू Y1 माइनस EA माइनस EB इंटू Y2 माइनस EA इंटू Y3 इक्वल टू 0 और Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इंटू EA माइनस Y2 EB इक्वल टू Y1 E। इसी प्रकार नोड B पर किरचॉफ्स के करंट लॉ की इक्वेशन आती है I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। B नोड की इक्वेशन में I2, I4 और I5 के मान रखने पर हमारे पास इक्वेशन आती है EA माइनस EB इंटू Y2 माइनस EB इंटू Y4 माइनस EB इंटू Y5 इज इक्वल टू 0 और Y2 EA माइनस Y2 प्लस Y4 प्लस Y5 इंटू EB इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशंस 3 और 5 हैं। इन दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं EA और EB। EA A नोड पर वोल्टेज का मान है और EB B नोड पर वोल्टेज का मान है। इन दोनों इक्वेशंस को A और B के लिए EA और EB के लिए सॉल्व किया जा सकता है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। The second method is mesh or loop analysis. This method is used when the primary aim is to find the currents in different branches. Here the equations are obtained in terms of the impedances of the elements and the current flowing through them. इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब हमें किसी ब्रांच में करंट का मान निकालना होता है और ये इक्वेशंस इम्पीडेंस और करंट की फॉर्म में होती हैं। इस डायग्राम में जो नेटवर्क दिया गया है उस नेटवर्क में 5 इम्पीडेंसेस हैं Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 और एक वोल्टेज सोर्स E लगा हुआ है। यहाँ पर 3 लूप हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट लूप से जो करंट है वो करंट I1 है, सेकेंड लूप में करंट I2 है और थर्ड लूप में करंट I3 है। फर्स्ट लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करने पर हमारे पास इक्वेशन आती है Z1 I1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3 माइनस E इक्वल टू 0 और Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2 इक्वल टू E। इसी प्रकार सेकेंड लूप के लिए वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है Z2 I2 प्लस I2 माइनस I3 इंटू Z5 प्लस I2 माइनस I1 इंटू Z3 इक्वल टू 0 और माइनस Z3 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 इंटू I2 माइनस Z5 I3 इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड लूप के लिए जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करते हैं तो जो इक्वेशन आती है वो आती है Z4 I3 प्लस I3 माइनस I2 इंटू Z5 इक्वल टू 0 और माइनस Z5 I2 प्लस Z4 प्लस Z5 I3 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं
इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, I1, I2 और I3। तो इसमें हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तीनों वेरिएबल्स का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास तीन इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ Z मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। यहाँ Z11 Z1 plus Z3 है। हम देख सकते हैं कि हमारे डायग्राम में फर्स्ट लूप के अंदर जो इम्पीडेंस है वो Z1 और Z3 है। Z12 Z21 माइनस Z3। तो फर्स्ट और सेकेंड लूप के अंदर जो कॉमन इम्पीडेंस है वो Z3 है। Z13 Z31 0। तो फर्स्ट और थर्ड लूप के बीच में कोई भी इम्पीडेंस कॉमन नहीं है। Z22 Z2 plus Z3 plus Z5। सेकेंड लूप के अंदर जो इम्पीडेंस आते हैं वो Z2, Z3 और Z5 आते हैं। Z23 Z32 माइनस Z5। इस तरह से सेकेंड और थर्ड लूप में जो इम्पीडेंस कॉमन है वो Z5 है। Z33 Z4 plus Z5। इसका मतलब थर्ड लूप में जो इम्पीडेंस है वो Z4 और Z5 है। इन इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल्स के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले Z मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जिसे डेल्टा Z क्या कहा जाता है। सो डेल्टा Z इज इक्वल टू Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। इसका मान डेल्टा Z है। अब हमें डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 निकालने के लिए हम इस Z मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं और उसकी जगह E मैट्रिक्स को रख देते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो है E Z12 Z13, 0 Z22 Z23, 0 Z32 Z33। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आती है डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 और डेल्टा Z को यूज करके हम I1 का मान निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा Z। इसी प्रकार Z मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम को हटा देते हैं और उसकी जगह E मैट्रिक्स रखते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो है Z11, E Z13, Z21, 0 Z23, Z31, 0 Z23। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसका मान आता है डेल्टा 2 और इसको यूज करके हम I2 का मान निकालते हैं। तो I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा Z। इसी प्रकार I3 भी निकाला जा सकता है। I3 निकालने के लिए हमें डेल्टा 3 का मान चाहिए। डेल्टा 3 निकालने के लिए वापस वही मेथड काम में लेते हैं। हम Z मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को हटा देते हैं और उसकी जगह E मैट्रिक्स रखते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो है Z11, Z12, E, Z21, Z22, 0, Z31, Z32, 0। इसका मान डेल्टा 3 है और I3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा Z। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि IR is equal to delta R by delta Z, where delta R is the value of that determinant which is obtained by replacing the rth column of Z matrix by E column matrix। मतलब डेल्टा R उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जिस मैट्रिक्स में हम rth कॉलम को हटा देते हैं और उसकी जगह हम E कॉलम को रख देते हैं। इस प्रकार हम किसी भी नेटवर्क के लिए I का मान निकाल सकते हैं। In the next lecture, we will discuss driving point impedance and transfer impedance. Thank you. Stay home. Keep studying.